कैसे हो? ठीक है सर। मेरा वॉइस इको हो रहा है मैम। तब पढ़ाई कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है सर, ठीक ठाक। कम्युनिकेशन चल रहा है क्या? सिखा के गए थे। क्या सर? इंग्लिश वाला प्रैक्टिस चल रहा है जो सिखा के गए थे। हाँ सर, इंग्लिश वाला तो करता रहते घर हैं। में। वेरी गुड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे आज। ओके। एमबीए पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हाउ द ह्यूमन। मैम मेरा वॉइस इको हो रहा है। हेलो। क्या एक बार रिज्वाइन करूं मैम? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो। एक एक बार रिज्वाइन करता हूँ मैम, वॉइस इको। देखो अभी ठीक है? हेलो। हेलो मैम। अच्छा। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके। So that the efficiency and the so that the work efficiency and effectively in the organization can run for achieving its organizational goal. This may be the definition of human resource management. मतलब how to distribute the work among the workers effectively to bring the output for organizational goal. That is called human resource management. It's a very important part of an organizations to organize the working culture effectively. Okay, to manage the employees effectively. Okay, many pros and cons are there among the employees. Some employees will think positively, they work positively for on behalf of an organization for achieving the goal, but some employees are also there who are always negative. If you give something positive to that organization, to that employees, he or she will never ever going to praise for any organization, for that organization. So to manage this human resources is one of the most important and difficult tasks for any organization to run properly. This is one of the most important, and you can say it very critical. Okay, sometimes the employees will strike, make a strike, call for a strike, not make, sorry, call for a strike. Why? Increase of their demands. Increase. They have to be, their demands have to be fulfilled. Okay, now there is a pressure on the human resource management. Okay, those who are in the looking after the human resource, there is a pressure from the top level management that anyhow you need to negotiate with the employees and bring that means run that work non-stop, without any stopping, run that work. The flow of the work should continue. This might be the pressure, and this pressure can means very important, difficult pressure to handle the human who are in the human resource department. Okay, that's a very important thing, because you have to look after the person who is looking after the human resource management. Or she have to fulfill and look after the requirements of the employee, means goodwill of the employments, benefits of the employee. Side by side, beside that, he or she have to look after the top level management also. So just to make a balance between this, it's a bridge. You can call it human resource management. अब हिंदी में अगर आ जाते हैं, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट किसी भी संस्थान
बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिविटल रोल होता है। वो एक ब्रिज जो कि एम्प्लॉयज और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं। ना तो आप मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे रहते हुए ना तो आप एम्प्लॉयज को ना खुश कर सकते हो, ना अपने बॉस एग्जिस्टिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो बॉसेस है आप उनको मतलब क्या बोले उनको नाखुश नहीं कर सकते हो। आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन द वर्क, तब आपका नौकरी बरकरार रहेगा। अदरवाइज यू आर अनफिट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन द एनी डिपार्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट्स एकदम फैक्ट। एनी हाउ यू हैव टू निगोशिएट एंड द फ्लो ऑफ द वर्क शुड कंटिन्यू। बहुत डिफिकल्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मेंटेन करना किसी भी डिपार्टमेंट में। नाउ इन सिंपल वर्ड, HRM मीन्स हैंडलिंग एम्प्लॉयज। मैंने कहा था इट्स हैंडलिंग एम्प्लॉयज फॉर हायरिंग देम टू ट्रेनिंग देम एंड पेइंग एंड सपोर्टिंग देम। देखो लास्ट वाला लाइन जो लिखा है एंड सपोर्टिंग देम, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। सपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू सपोर्ट द एम्प्लॉयज, यू हैव टू लुक आफ्टर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। हालांकि फिलहाल की ये तो सब बुकिश है, आपको बुक में ये सब वैल्यूएबल चीजें मिलेगा, लेकिन हकीकत अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो इतने इतने सारे चीजें आपको नहीं मिलेगा। सपोर्टिंग आपको उतना नहीं मिलेगा। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, डेफिनेटली है, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए ही काम करते हैं। दे इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे आर नॉट इवन they are not working for any employees or not. What they're looking after the employees satisfaction or benefits of the employee, they are not looking after that. लेकिन अगर हम बुकिश डेफिनेशन में जाए तो आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यू हैव टू सपोर्ट द एम्प्लॉइज, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। इसीलिए आप देखिएगा टाटा स्टील प्लांट हुआ, टाटा क्यूमेंस हुआ, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां का जो वर्किंग कल्चर्स है दैट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब हमेशा कुछ दिन पहले आप अगर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या कुछ भी प्रभात खबर आप न्यूज पढ़ते होंगे, इफ यू आर गोइंग एंड रीडिंग दिस न्यूज़पेपर्स यू कैन फाइंड इट आउट दैट रिसेंटली देयर वाज अ टॉक, sorry, there is a talk on employabilities, permanent employabilities and what you can say the salary increments. अब ये जो निगोशिएशन पार्ट है ये एचआर डिपार्टमेंट का है। अपना माइक ऑफ करो है तन्मय, माइक ऑफ करो तन्मय, माइक ऑफ करो तब समझ में आएगा। ध्यान से समझो मैं जो समझाना चाहता हूँ, चीज को समझना बारीकी से बहुत जरूरी है। तो रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि देयर विल बी एन इंक्रीमेंट्स फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ टाटा स्टील प्लांट विद दिस मच परसेंटेज ऑफ अमाउंट, ओके 50%, 25%, whatever the increment. And apart from that, those who are working for 5 to 6 years continuously now they will be permanent staff, they will be recognized as a permanent staff. तो ये काम जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन वो कभी भी एम्प्लॉयज के बिहाफ काम नहीं करता है। इसीलिए यहाँ का जो वर्क कल्चर है, आप अगर टाटा स्टील प्लांट का वर्क कल्चर देखिए, वहां का एक ये बना हुआ है, एम्प्लॉयज का क्या बोलते हैं उसका, उनका जो होते हैं ना, अरे यार मैं नाम भूल जा रहा हूँ उसका, उनका एक अलग सा एक ग्रुप बना हुआ है। आप जो एक यूनियन, सॉरी, एक एम्प्लॉय यूनियन ग्रुप बना हुआ है। ये सब मुद्दा है, यूनियन उठाएंगे, यूनियन में बातचीत चलेगा, यूनियन विल लुक आफ्टर द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर उल्टा चीजें है। इन दिस पर्टिकुलर एरिया, स्पेशली इन इंडिया, everything is bills alternate, everything is reciprocal. The union leaders, employees union leader will look after the benefits and look after the supporting of the employees. This is the work culture of our India. Okay, HRM डिपार्टमेंट है, लेकिन ये इतना काम नहीं करेंगे। यूनियन लेबर काम करे, यूनियन स्ट्राइक बुलाएंगे, काम नहीं हो रहा है, काम बंद हो जाए, काम करने ही नहीं देंगे आपको। यूनियन लीडर का सिलेक्शन होता है, यूनियन लीडर को सपोर्ट मिलता है, यूनियन लीडर फंड क्रेज करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, उनको फंड मिलता है, फंडिंग मिलता है, और भी बेनिफिट्स मिलता है। यूनियन लीडर का जब सिलेक्शन होता है, वोट दिया जाता है, बाकायदा वो जनरल इलेक्शन जैसे होता है उसी तरह से जनरल इलेक्शन में इसी तरह से यूनियन लीडर का भी चयन होता है। आप देखिएगा उस दिन छुट्टी रहता है, डिक्लेरेशन होता है, पेपर में एड निकलता है, इश्तेहार निकलता है, कौन सा कैंडिडेट खड़ा है। सो ये बड़े स्केल में चला गया है। यूनियन एम्प्लॉइज ये एचआर का डिपार्टमेंट का काम करते हैं, लुक आफ्टर द एवरी बेनिफिशियल्स ऑफ द एम्प्लॉइज। इसलिए एम्प्लॉय भी खुश है। जहां पर ये चीजें नहीं होता है, एचआर डिपार्टमेंट नहीं देखते हैं, वहां इस तरह का लीडर खड़े हो जाते हैं और वो फिर एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं।
ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। दिस इज नंबर वन एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब क्या है? राइट पीपल, राइट वर्क एट अ राइट टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोटो होता है फॉर द रिक्रूटमेंट पर्सन, फॉर एनी रिक्रूटमेंट पर्सन। हायरिंग राइट पीपल, right time for right work. This is one of the most important part in HRM को। क्यों? This is the thing, if the top level management find that this department is failed to give proper candidate for this particular job role, company is liable to fire that HRM department's employee. Yes, आप अगर सही जगह पर सही एम्प्लॉय फिट बैठा नहीं पा रहे हो, यू इफ यू आर फेल टू डू दैट, then it's a very difficult for you to continuation of the job. Then you will find difficult to for your continuation in the HRM department. ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। दूसरा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बिसाइड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज to train the employees, to give the employees a training so that their skill should improve. Finally, what will happen? If the skill of the employees will improve, automatically the organization can reach its organizational goal. Automatically आप देखिएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्किल्ड एम्प्लॉइज है, ओके, मेहनत सभी करते हैं तन्मय, एवरीबॉडी इज डूइंग हार्ड वर्क, लेकिन स्किल्ड जो होता है वो अलग चीज होता है। आज की एआई के दौर में द वर्क का जो कल्चर है, एथिक्स है, नॉर्म्स है, वो टोटली कंप्लीटली चेंज हो गया है। यू आर वर्किंग हार्ड, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द एआई टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, यू डोंट नो artificial intelligence, you don't know machine learning, then you are not among the skilled labor. You will going to be considered as a semi skilled labor. आपको सेमी स्किल कैटेगरीज में गिना जाएगा। आज की दौर में किसी भी इंडस्ट्रीज में आप जाते हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री, चाहे आप स्टील इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज में आप चले जाइए, अगर आप एआई स्किल्ड नहीं जानते हो, देन यू आर नॉट एबल टू बी कंसिडर्ड एज अ skilled employee for any organization. You will considered as a semi skilled employee. ओके, तो आज के दौर पे स्किल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ज्यादा स्किल, उतना ही ज्यादा हाइक, उतना ही अच्छा सैलरी, उतना ही अच्छा प्रमोशन, उतना ही अच्छा रिकॉग्निशन। तन्मय, ये बात हमेशा याद रखना। यहां तक जो मैंने समझाया, कोई पॉइंट्स डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आया? नहीं सर, ओके। Okay. Next point is performance management. Wow, this is another important topic. Means evaluating the work. Your performance will be evaluated. Based on your evaluation and performance, you will be get appraised. You will get the appraisal. You will going to get the promotion. You will going to get the bonus. Whatever the means benefits are there in an organization, you will going to be get. But before that, your works will be evaluated. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, एवरी ऑल्टरनेट 6 मंथ, बेसिकली एजुकेशन इंडस्ट्रीज में तो होता है एवरी ऑल्टरनेट 6 मंथ्स और 1 ईयर आपका एक रिव्यू कमिटी बैठता है। रिव्यू जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल्स, फिर कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, वो रिगोरसली, वो नॉन स्टॉप एक फैकल्टीज उसके वर्क, उसका कल्चर्स को वो मॉनिटर करते हैं। कैसे? रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि नहीं, प्रॉपर अटेंडेंस शीट वो लेते हैं कि नहीं, टाइम टू टाइम ही इज टेकिंग द क्लासेस और नॉट, ये सब देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। whether how is the feedback of that particular faculty who is taking the classes, वो HODs को भेज के वो फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से बकायदा। उसके बाद उनका नोट्स कैसा है, क्वालिटी ऑफ नोट्स कैसा है, वो रिपोर्ट्स कैसे करते हैं,
उसके बाद उनका टाइमिंग क्या है, वो राइट टाइम में क्लासेस जाते हैं कि नहीं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज है या फैकल्टीज है, एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है कि वो टाइम टू टाइम क्लासेस नहीं जाते हैं। और उसके बाद उनका क्लास एडजस्टमेंट कैसा है, अगर वो एब्सेंट होता है किसी वजह से, किसी कारणवश वो एब्सेंट हो गया एक दिन, तो उसका क्लास का एडजस्टमेंट होता है कि नहीं, वो क्लास एडजस्ट करके जाते हैं कि नहीं। एवरी योर एथिक्स, एवरी वर्क कल्चर विल बी नोटेड बाय दिस टीम। बेस्ड ऑन दिस, मैं एक एग्जांपल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। बेस्ड ऑन दैट you will be going to get appraisal, your salary will increase, you will have to get the promotion। इसके बेसिस पे आपको मिलता है। अगर एक भी नेगेटिव चीज इसमें नहीं लगा तो आपका फिर अप्रेजल रोक दिया जाता है, नहीं होता है। स्पेशली ये प्राइवेट कंपनीज में किया जाता है। अगर परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस में कुछ भी नेगेटिव आया तो आपका वो अप्रेजल उस महीने के लिए या उस साल के लिए रोक दिया जाता है, इंक्रीमेंट नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड इवेल्युएटिंग ऑफ वर्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इसमें क्या होता है, सैलरीज कितना है, इंसेंटिव आपको कितना मिल रहा है, रिवॉर्ड्स कितना मिल रहा है। दीज आर द कंपनसेशन एंड बेनिफिट। बेनिफिट में और भी आ सकता है, मीन्स आपका मेडिक्लेम है, आपका पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, आपका ईएसआई है। दिस ऑल कम्स अंडर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, और ये एचआर डिपार्टमेंट्स इस चीज को फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज रिलेशन विद अदर एम्प्लॉइज। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये होता है हमारे हमारे कॉलेजेस में, तो ये डेफिनेटली होते हैं। डेफिनेटली ये सब जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ बताया है, हमारे इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन इंडस्ट्री बिल्कुल होता है। एक एम्प्लॉइज के साथ दूसरे एम्प्लॉइज का व्यवहार कैसा है, सपोर्टिंग है कि नहीं, गुड वर्क कल्चर मेंटेन करते हैं कि नहीं, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं कि नहीं। दिस ऑल विल बी इवेल्युएटेड एंड बेस्ड ऑन दैट they will be get appraised। okay, देखो एक एग्जांपल दिया है। in a company, human resource management ensure the right person get the right job, work effectively and stay motivated। this example is absolutely correct। कोई भी किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है, 100% श्योर करता है कि एक राइट पर्सन को राइट जॉब और एक वर्क इफेक्टिवली होना चाहिए और मोटिवेटेड होना चाहिए, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, देन ओनली एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन रीच इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तब जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस का पंचम लहराता है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिकैप्चुलेट करता हूं। व्हाट आर द की फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तीसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चौथा है कंपनसेशन एंड बेनिफिट, पांचवा है एम्प्लॉयज रिलेशन। These are the 5 important key factors or key of functions of human resource management। और तन्मय याद रखना, this question is very very important। हर every मतलब MBA में ये questions को पूछा जाता है। What are the key factors of human resources? What are the what you can say important of human resource management? What are the works of human resource management? ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है। पहला जो मैंने समझाया था, द मेन इंपॉर्टेंट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उनका गोल जो होता है वो पहला एम होता है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक आप छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर ले लेते हैं, उसका एक अचीवमेंट होता है, उसका एक गोल होता है कि 5 साल के विद इन 5 years आई विल बी इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशंस का ये मोटो होता है, ऑर्गेनाइजेशंस की ये गोल सेटअप होता है। एंड फॉर दैट they always ensure, human resource development always ensure that a particular a right candidate is selected for the right job and improve overall। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एक गलत आदमी गलत जगह अगर नौकरी कर रहा है, जो उस जगह पर काम करने के लिए वो एफिशिएंट नहीं है,
आप देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू से यू लाइक दैट, फर्स्ट करो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ओके, अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एवरी एम्प्लॉइज आर skilled employees, they are working day and night efficiently for the benefit of the organization. Out of this total employees, one or two employees are semi skilled employees, they are not up to the mark, they are not showing their performance 100%, they are incapable to show 100% efficiency in the work. इससे दिक्कत क्या होगा मालूम है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, करोड़ों का। फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, आप लोग ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन टाइम टू टाइम अगर वो काम आप सक्सेस करके नहीं दे रहे हो, देन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन के गोल 100% पाने के लिए राइट पीपल राइट टाइम फॉर द राइट जॉब इज वेरी वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस का इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय हैज अ स्किल, side by side knowledge and has the ability to take the challenges, then what will happen, the employees or the HR or the organization must use the best of those that employ, उसका इस्तेमाल भरपूर करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए कोई भी एक दो एम्प्लॉय ऐसा है जो कि जबरदस्त स्किल्ड है, जबरदस्त उनको नॉलेज है, जबरदस्त वो मोटिवेटेड है, इस तब क्या होगा कि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल सेट कर सकता है। ठीक है, थर्ड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देखो एम्प्लॉय डेवलपमेंट को थर्ड पॉइंट में रखा गया है, क्या बोल रहा है, प्रोवाइड ट्रेनिंग डेवलपमेंट टू इंप्रूव स्किल एंड कैरियर ग्रोथ। ठीक है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। हाउ टू डेवलप द एम्प्लॉयज, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर improve the skill and career growth. Automatically if your skill will going to improve, automatically your career will also going to get improved. अगर आप स्किल्ड नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप उम्मीद मत रखिए कि आपका कोई ग्रोथ आने वाले समय पे होगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत धारणाएं हैं। आप अगर डेवलप्ड हो, प्रॉपरली ट्रेन्ड हो, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, वर्क के लिए आप मोटिवेटेड हो, देन ऑटोमेटिकली आपका जो करियर ग्राफ है वो ऊपर की तरह जाएगा। मेंटेन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज दैट, क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट टू कीप एम्प्लॉयज हैप्पी एंड मोटिवेटेड। तन्मय, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे समझने वाली बात है। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एक भी गलत एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो उस एक गलत एनवायरनमेंट की वजह से या तो पूरा डिपार्टमेंट या पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिमोटिव हो जाता है। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को टॉक्सिक ना करे, देखे कि एनवायरनमेंट में टॉक्सिक तो क्रिएट नहीं हो रहा है। आप कभी तन्मय बीपीओ सेंटर देखे हो, क्या बोलते हैं बीपीओ का फुल फॉर्म, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ सेंटर देखे हो? नो सर। कोलकाता प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, केपीओ आप देखे नहीं हो ना? कभी आप मानगो जाइएगा, वहां देखिएगा एक बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो हमारे कॉलेजेस में या फिर किसी भी कॉलेज में बिजनेस प्रोसेस आउट मैंने बीपीओ में भी सिलेक्शन होता है, वर्क होता है। वहां का वर्क कल्चर देखिएगा, वहां का वर्क कल्चर बहुत डिमांडिंग होता है। एनवायरनमेंट मतलब एकदम क्या बोलूं मैं, नेगेटिव का कोई जगह नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन जो है
वो आपको जब आप अंदर चल जाइएगा ना ऑफिस के अंदर, तब आपको वो फ्रस्ट्रेशन दिखेगा नहीं। हजारों लड़के बीपीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपना शिफ्ट को पूरा कर रहे हैं, 24/7 द बीपीओ सेक्टर इज कंटिन्यू, वो कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं, कंटिन्यू, देयर इज नॉन स्टॉप वर्किंग। लेकिन जब आप स्टेप इन करिएगा ना, व्हेन यू स्टेप इन इनटू द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, महिंद्रा टेक का ही बहुत बड़ा बीपीओ सेंटर है कोलकाता, सॉल्ट लेक सेक्टर 5। आई वाज मींस आई वाज जब मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में था, तो मुझे एक बार विजिट करने के लिए बोला गया था कि वहां का थोड़ा सा एनवायरमेंट का जायजा लीजिए। तो जब मैं वहां से निकल रहा था, एक दो स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो बहुत ज्यादा डिमोटिव थे, वो मोटिवेटेड नहीं थे, क्योंकि सैलरी बहुत कम था, वर्किंग आवर्स बहुत जबरदस्त था, छुट्टी ना के बराबर थी। एक ही दिन में आपको छुट्टी मिलता था, दैट इज ऑल्टरनेट। आपको हर एक संडे छुट्टी मिलेगा, दैट इज नॉट ए गारंटी, लेकिन हाँ, हफ्ते में एक दिन आपका छुट्टी रहेगा। दूसरी बात है कि आपका वो जो दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, ईद, मोहर्रम, हम लोग जैसे छुट्टी मनाते हैं, वहां इस तरह का कल्चर नहीं है। नेशनल हॉलीडेज, दैट टू सर्कल बेसिस, रोटेशनल बेसिस यू विल गोइंग टू गेट। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है अपने जो वहां के जो एम्प्लॉयज है। लेकिन विश्वास कीजिए तन्मय, जब आप फ्लोर में अंदर जाइएगा ना, फ्लोर के अंदर जाइएगा ना, आपको एनवायरमेंट देख के ना लगेगा कि कितना अच्छा जगह हम आ गए काम करने के लिए। एकदम सेंट्रल एसी, कैफेटेरिया इज देयर, मतलब किसी भी चीज का कमी नहीं है आपको, एवरीथिंग इज देयर। बिकॉज मालूम है ये 9 to 5 वाला जॉब नहीं है, यहाँ आपको 12 आवर्स, 14 आवर्स का शिफ्टिंग होता है। फॉर गर्ल्स 9 to 10 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग, फॉर बॉयज 14 to 15 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग। पता है जो एचआर डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं या यहाँ पर जो एम्प्लॉयज आते हैं, उनको मैक्सिमम टाइम यहीं पर दिया जाता है। तो वो जो ऑफिस एरिया ना, आपको लगेगा मैं कोई एक फ्लैट में या फिर एक रेस्टोरेंट या एक होटल में आ गया हूँ। जस्ट लाइक दैट, सोफा इज देयर, टी काउंटर इज देयर, कॉफी काउंटर इज देयर, ग्रीन टी काउंटर इज देयर, कैफेटेरियाज आर देयर, आपका लंच डाइनिंग प्लेसेस आर देयर। मतलब किसी भी चीज का कमी नहीं है, बस कमी है वहां क्या, एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्रोथ ऑफ द वर्क। कंपनीज अपना फायदा कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है वहां पर। आपको टारगेट दे दिया जाता है, विद इन दिस स्टिपुलेटेड टारगेट यू हैव टू फुलफिल वॉट एवर द वर्क्स बीन असाइंड टू यू। कोई भी टास्क आपको दिया जाएगा। आप कभी टीसीएस जाइएगा तन्मय, इफ यू विजिट टू द टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यहीं पर है, आप जाइएगा, वहां का वर्क कल्चर देखिएगा। वहां से जब आदमी निकलता है, तब वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, he or she is frustrated because not so much of benefits are there, not so much of perks are there. But when you just enter the floor of the TCS ना, electric vibe is there, electric vibe, वहां कोई नेगेटिविटी नहीं है, माहौल को इतना ब्यूटीफुली बना के रखा है। बट वही, सैलरी इज मिनिमम, तो कोई काम करने खोजता नहीं है। एवरी वीक्स कोई ना कोई छोड़ देता है काम, एवरी वीक्स one of two employees are leaving, left out job. So employee satisfaction is one of the most important thing. अगर employee satisfaction नहीं रहेगा, employees happy नहीं रहेगा, motivated नहीं रहेगा, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट अगर आप नहीं दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन जो रफ्तार में आगे बढ़ना चाहिए, वो रफ्तार फिर स्लो हो जाएगा। ये है, इसे कहते हैं मेंटेन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। Now, to increase the efficiency and performance of the employees, if you want to improve the productivity of the organization, then you have to be increase the efficiency, skilled and performance of the employees. देखो, एक के साथ कड़ी जुड़ा हुआ है तन्मय, आप किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं कम पैसे में काम करा लूंगा, वो आपके लिए 1 महीना 2 महीना काम करेगा, अचानक जैसा ही वो कंपनी के एम्प्लॉय छोड़ देगा, आपको दूसरा कम एम्प्लॉय लाना पड़ेगा। दूसरा एम्प्लॉय लाने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर वो छोड़ देगा। ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत दिक्कत है। इसीलिए ये चैलेंजिंग है टू मेंटेन द ये प्रोडक्टिविटी
ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जमशेदपुर मेटल ट्रीटमेंट, JMT, आदितपुर इंडस्ट्रियल, अगर एरिया अगर आप कहीं गए होंगे तो बहुत पहले जमशेदपुर मेटल ट्रीटमेंट, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, वहां पर गेट नंबर 3 में काम करते हैं जितने भी मतलब ग्रेड 3 एम्प्लॉयज है, वो वहां पर गेट नंबर 3 में काम करते हैं। तो जमशेदपुर मेटल ट्रीटमेंट का काम क्या था, मेटल हीट, जितने भी ये जो आप शॉकर्स देखते होंगे, जितने भी ब्रेक्स देखते होंगे, उसको हीट देना, हीट प्लांट है वो, ठीक है। तो वहां जितने भी एम्प्लॉयज है सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है, और सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर दे आर पेइंग पर डे बेसिस, वेजेस मिलता है। अगर एक दिन छुट्टी गया तो आपका एक दिन का वेजेस चला गया। तो सैलरीज रहता है 300-400 रुपीज पर डे, मतलब मंथली 400 12,000 टू 16,000 रुपीज, मीन्स 1.6 लाख रुपीज या 1.20 लाख रुपीज। दिस इज द ईयरली इनकम ऑफ एनी एम्प्लॉयज। तो वहां पर जैसे ही सैलरी हाई करने की बात होता है ना, तो क्या होता है, ठेकेदार जो होता है दूसरा ही दिन एम्प्लॉय चेंज कर देते हैं, दूसरा एम्प्लॉय पकड़ के लेके आते हैं। या फिर एम्प्लॉयज क्या करते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई तू 7 दिन काम करेगा, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, 7 दिन बाद तुम फिर दूसरा दिन आएगा। मतलब लगातार उससे काम नहीं करेगा। अगर आप सोचो किसी मजदूर ने कहा मेरा 500 रुपया रोज है, मैं आपका काम करूंगा, तो ठेकेदार क्या करेगा, एक हफ्ता काम करेगा, एक हफ्ता बिठाएगा, फिर एक हफ्ता काम करेगा। ठेकेदार को भी अपना पैसा बचाना है। इस तरह से काम चलता है कभी कभी। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का जो इंप्रूवमेंट होता है वो लेवल गिर जाता है। और इसी वजह से जमशेदपुर मेटल ट्रीटमेंट इतना बड़ा मेटल ट्रीटमेंट था, बाहर बाहर से सब पार्ट्स आते थे यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, हीट ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वो बंद हो गया फाइनली। रामाकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड टेक ओवर कर लिया। कभी अगर उधर जाइएगा तो देखिएगा RKFL का बैनर लग गया है। दिस इज द थिंग। डुबाया किसने, डुबाया ठेकेदार ने डुबा दिया। ओके, उसके बाद क्या है, मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट है मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना अच्छा रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉइज के साथ बनाइएगा या एम्प्लॉइज मैनेजमेंट के साथ बनाइएगा, उतना ही अच्छा फायदा दोनों को होगा। ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, एम्प्लॉइज भी ग्रो करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो एम्प्लॉइज भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन गिर गया तो एम्प्लॉयज का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो क्या है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है इंश्योर फेयर कंपनसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, प्रोवाइड प्रॉपर सैलरी, बढ़िया सैलरी, प्रॉपर इंसेंटिव एंड बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेयर कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर सैलरी, सैलरी शुड बी ऑन टाइम। ओके, आप जितने भी सैलरी दे रहे हो पर टाइम में दीजिए, कुछ इंसेंटिव दीजिए, कभी कभी कुछ बेनिफिट्स दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ESIC कार्ड, आप उनका इंश्योरेंस करवा दीजिए, ठीक है। इस तरह का बेनिफिट, हॉस्पिटल्स, कुछ कुछ ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां पर अगर ये मरीज जाएंगे, इस कंपनी के मरीज जाएंगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कंपनी विल गोइंग टू बियर द अमाउंट, ठीक है, जितने भी खर्चा आएगा कंपनी बियर करेगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ग्रो करेगा। लास्ट है अडेप्ट टू चेंज, help employees to adjust the new technologies and organizational change. Sometimes what happen, many employees are there who doesn't like the changes. They want to remain in the same position, remain in the same chair, like to do the same work repeatedly for years after year. If you want to change them, they will never ever going to appreciate that for the changing. This is one of the most important part of any organizations. Especially it happens with the employees who are much older than the existing or new employees. The employees who have crossed 50 plus, if they are working in any organization, they never ever going to appreciate the changes that made by the organization. They will never ever going to adopt the changes, the new technologies that are coming. They never want to learn and they never motivated other employees to learn.
I can give you the example of this. I have always giving you this example. One or two faculties are there in our industry, education industry, who doesn't like the changes, who doesn't like the new technologies, who doesn't like to adopt new technologies. Okay, they are very much worried about the AI innovations of an AI. They feel that this AI will going to destroy the career of the employees. They will going to destroy the career of the student. To some extent, he is correct, but not 100%. Okay, if you can utilize the AI properly, then only you will going to get the benefit. If you learn the skill of the AI technologies, then you will going to get the benefit. Okay, but if you misuse the AI, if you don't know how to use the AI, then automatically you will be in a danger. 1 or 2 days, may the industries will going to get replaced. किसी ना किसी दिन आपको रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो चेंजेस अगर कोई आता है तो आप उस चेंज की एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, है ना. माहौल 365 दिन एक ही जैसा एक ही दिन नहीं रहेगा. कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, चेंजेस आएंगे, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये रीत है, ये रिवाज है, जिसका जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो जैसे घूमता रहता है, तो चेंजेस भी आना अनिवार्य है ना. ठीक है, तन्मय समझ में आया यहाँ तक जो मैंने समझाया है? यस सर. कोई पॉइंट्स अगर डाउट है तो पूछो. अब तक जो मैंने पढ़ाया सुन रहे हो ना? ऑफ करके आईपीएल देख रहे हो? नहीं सर, आईपीएल नहीं देख रहा. मैंने मजाक से बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं सर, मुझे पता है सर. अच्छी. नेक्स्ट पॉइंट मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एचआर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या है? प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग में होता है प्लानिंग. एवरी डे द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज टू मेक अ प्लान, हैज टू डिलीवर द रिजल्ट. Always the boss wants something new from you. If you are working in the human resource development, your boss wants something new from you, some new innovative ideas, some new plan. Okay, whenever they will going to call for a board meeting, HR will be there, HR department staff will be there. Okay, and the boss first point is the pointing the fingers towards the human resource development and asks, what is the new plan for the organization growth? So you will find that whosoever working in any organization, especially in the human resource development, they always ready with their PPTs. उनको हमेशा अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी रखना ही पड़ता है. पता है उनको जब भी बॉस मीटिंग में बुलाएंगे कुछ ना कुछ नया हमसे मांगेंगे. XYZ कुछ नया सोचा है इसके बारे में, कुछ नया प्रपोजल है तुम्हारे पास? आप अगर आपके पास जवाब है भी नहीं तो आपको फिर भी हाँ करके प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कल सर बोर्ड मीटिंग में आपको बुलाया गया है. HR तुरंत समझ जाएगा कि मेरे से प्रेजेंटेशन मांगेगा. अभी क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का हाल हकीकत क्या है और नया क्या करने वाला है. तो रात भर बैठ के वो अपना PPTs तैयार करते हैं. बड़े बड़े कंपनीज में होते हैं ये सब चीजें. तो प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम. ओके, नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पहले भी बता चुका हूं कि HR का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ये इतने बार बार रिपीटेशन इसलिए किया जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन इंटेंशन यही होता है कि प्रॉपर कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करना, प्रॉपर कैंडिडेट का ये काम चुनने में आप गलत करते हो तो आपका रेपुटेशन, आपका इमेज, आपका अप्रेजल सब डाउन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा किसी भी एम्प्लॉइज अगर नया रिक्रूटमेंट होता है तो 6 month पीरियड इज कॉल्ड प्रोविजनरी पीरियड. प्रोविजनरी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन पीरियड. आपको HR मॉनिटर करेगी कि मैंने जो एम्प्लॉइज लाया है, सर्टिफिकेट, उसका वर्क कल्चर, उसका एक्सपीरियंस देख के, रेज्यूमे देख के, क्या सही में वो काम करने लायक है, क्या वो काबिले तारीफ है इस काम को कंप्लीट करने में, कर पाएगा, कैन ही पुल आउट द वर्क, कैन ही पुल अप द वर्क. इसीलिए 6 months इज एन ऑब्जर्वेशन पीरियड. अगर इस दौरान 6 months ऑब्जर्वेशन पीरियड में आप अपने काम से
अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को या एचआर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल बी रिप्लेस्ड। स्ट्रेट क्वेश्चन तन्मय, आपको रिप्लेस कर दिया जाए, पक्का एकदम समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है तन्मय, ये हर एक इंडस्ट्रीज में है। इसका एक्सपीरियंस मैं भी कर चुका हूं। जब मैं पहला पहला फैकल्टीज बना था, तो मैं जब क्लासेस लेने जाता था, तो हमारे मैनेजमेंट के ग्रुप में का जो डीन होते थे, वो पीछे से जाके चुपके से लास्ट बेंच के लास्ट कॉर्नर में हेड डाउन करके बैठ जाते थे और साइलेंटली वो सुनते थे, पढ़ा कैसे रहा हूँ, एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ, साथ बाय साइड नोट्स दे रहा हूँ कि नहीं, पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो पढ़ाया पढ़ाया चीज पढ़ा रहा है। ठीक है, ये बहुत मतलब माइन्यूट तरीके से वो देखते हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर जाके अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स या फिर प्रिंसिपल को या फिर मैनेजमेंट को देते हैं, सर ये लड़का ऐसा है, इसका फीडबैक ऐसा है। एक पत्ता लिखा जाता है, एक पेज लिखना पड़ता है एचआर को, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ मिस्टर गौरी शंकर पाल आई ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द क्लासेस ही इज टेकन इन बीटेक सीएससी और ट्रिपल ई। ऐसा लिखना पड़ता है उनको। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट, क्या क्या पढ़ा है आज, किस टॉपिक पे डिस्कशन किया है, कितना मिनट का डिस्कशन हुआ है, पॉइंट्स को कितना डिलीवर किया है, एक्सप्लेन कितना किया है, क्वेश्चंस पूछा गया कि नहीं, देयर इज क्वेश्चंस अराउंड है कि नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल। उसके बाद इजी नहीं है फैकल्टी जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टीज में आपको जाने के लिए बहुत सारे है। और विश्वास कीजिए अभी तो वो सर नहीं है, हमारे एनआईटी के प्रोफेसर से जो पहले प्रिंसिपल बने थे, ही वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। और एवरी सैटरडे प्रेजेंटेशन, फैकल्टीज पकड़ कर आज एचआर डिपार्टमेंट सॉरी साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन है, दूसरे शनिवार एवरी सैटरडे होता था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन है, किसी भी टॉपिक पे आपको बोलना है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। तीसरा नेक्स्ट सैटरडे मैकेनिकल डिपार्टमेंट को बोलना है, और बकायदा 10 बजे से लेके 1 बजे तक उस डिपार्टमेंट के जितने भी फैकल्टीज होते हैं सबको 25 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे बहुत सारे फैकल्टीज इस वजह से छोड़ के चले जाते हैं। नहीं ये अरे एक स्ट्रेस है ना, जैसे आपको रात को नींद नहीं आएगा, सर इतना स्ट्रिक्ट थे, आप रात को स्लीपलेस नाइट, यू हैव टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट। और जैसे जैसे दिन आएगा पता चलेगा कि नेक्स्ट सैटरडे मेरा प्रेजेंटेशन है, आपको कैसा लगेगा सोचो। तो दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, इंप्रूव्ड एम्प्लॉय स्किल नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। ये तो आप मैंने बता दिया है कि एम्प्लॉयज का स्किल नॉलेज और परफॉर्मेंस देखा जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मींस एम्प्लॉयज इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क, गिविंग द फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका वर्क कैसा है, उसका फीडबैक एचआर से लिया जाता है एकदम कंपलसरी एवरी मंथ 15 डेज ऑल्टरनेट। परफॉर्मेंस क्या है, अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई एम्प्लॉयज जो है, कुछ कुछ एम्प्लॉयज है जो अपना काम डिलीजेंटली और एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय और सैक कर दो, निकाल दो, रखना नहीं है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ना तन्मय एम्प्लॉयज मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपना हार या अपना लॉसेस बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये बिल्कुल नहीं, विश्वास कर लीजिए ये बात। आप तो अभी एमबीए पढ़ रहे हो, आगे जाके आपको नौकरी मिलने वाला है, तो ये सब जो थिंग्स है ना आपको याद रखना पड़ेगा। आपको एवरी डे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग फॉर यू। आपको ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स दे रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है, पैसा दे रहा है, आपको मंथली सैलरी दे रहा है, तो आपसे उम्मीद तो रखेगा भाई कि आप अपना परफॉर्मेंस 100% दीजिए। आप अगर सब कुछ मांग रहे हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, क्या करेंगे, आपको रखेगा नहीं, भाई आपको वार्निंग लेगा 2-3 बार, उसके बाद आपको निकाल देगा, यू जस्ट लीव। ओके, so performance management is very much important. Then compensation benefit, what is compensation benefit? Provide salary, incentive, bonuses and other benefits दिया जाता है। Then employees relation, just to maintain a very good relationship with the employees and the management,
ओके, ये बताया था। देन मोटिवेशन, encouraging employees to perform better than rewards and recognitions। अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हो, उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको रिकॉग्निशन दीजिए, अप्रेजल दीजिए, कुछ अवार्ड्स दीजिए, कुछ रिवॉर्ड्स दीजिए। इससे क्या होगा, अदर एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड होते हैं। अरे ये अच्छा काम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा काम करूंगा, डेफिनेटली आई विल बी रिवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट। So it will create a very good impact, good environment, a healthy competitive environment of any organization। इसलिए रिवॉर्ड, रिकॉग्निशंस, अप्रेजल, ये सब रखा जाता है, हमेशा याद रखना। देन लास्ट, नेक्स्ट, हेल्दी हेल्थ एंड सेफ्टी, ensuring a safe and healthy work environment। This is another important part of organization, just to maintain the safe and healthy working environment। वर्किंग एनवायरनमेंट को अगर हेल्थी नहीं रखिएगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजरमेंट अगर नहीं रखेंगे, व्हाट विल फाइनली हैपन, एक्सीडेंट विल ऑकर। एक्सीडेंट्स अगर होंगे तो एम्प्लॉयज में डिमोटिव हो जाएंगे, वो वर्क कल्चर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो जो एक चेन बना हुआ है, गुड रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट, वो टूट जाता है। इसलिए सेफ्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज। लास्ट है कंप्लेंट्स एंड लीगल फंक्शंस। व्हाट विल दैट, फॉलोइंग द लेबर लॉज एंड policies, lot of labor laws are there, lot of company policies are there, the employees have to go through the company policies, the organization have to go through the company policies, they have to follow the labor laws। Finally what will happen, सर आपका hello वॉइस somebody क्रैक want कर to say रहा है। something। सर आपका वॉइस क्रैक मेरा कर रहा वॉइस है सर। क्रैक कर रहा है अभी, अभी, हेलो, हेलो, हाँ अभी सर, अब क्रैक हो ठीक रहा है। है। नहीं सर, ओके। हाँ, इट्स ओके नाउ ना, ओके। तो फॉलोइंग द लेबर लॉज एंड एम्प्लॉइज, लेबर लॉज अगर आप देखिएगा, लेबर लॉ है मैनेजमेंट में, एमबीए का मैंने पिछले साल शायद पढ़ाया था, लेबर लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी पॉलिसीज, ये सब पढ़ा था, एमबीए में है। अगर ये आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, एंड आई विल शो यू व्हाट इज लेबर लॉ, व्हाट आर द कंपनी पॉलिसीज। ओके, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट थिंग्स है। ये किया क्यों जाता है, जस्ट फॉर द सेफ्टी, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। आपका एक पेपर है, लेबर लॉ एंड कंपनी पॉलिसीज। ठीक है तन्मय, अब तक जो पढ़ा है समझ में आया, कोई डाउट है? नहीं सर। सर एक बात पूछना था। बोलो, पूछो। बोल रहा हूँ कि सर, जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों के फैकल्टी में जो है कि इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है, तो ये क्या गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होता है कि खाली प्राइवेट सेक्टर्स में सर? गवर्नमेंट सेक्टर में तो और ज्यादा भी हो गया है फिलहाल, फिलहाल तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो और ज्यादा हो गया। पहले तो ये नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे स्टूडेंट का रिजल्ट, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इतना घटिया हो रहा है कि जिसका वजह से हमारी जो सरकार है, एजुकेशन मिनिस्टर है ना, बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कदम। एवरीडे बायोमेट्रिक डाल दिए हैं, पहले अटेंडेंस रजिस्टर में होता था, बायोमेट्रिक करना जरूरी है। पढ़ा कैसे रहे हैं, डीसी साहब, हमारे जो यहाँ के डीसी साहब है, नाम भूल जा रहा हूँ, वो जाते हैं, रेगुलर विजिट पे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, डे टू डे रिपोर्ट मांगा गया, पढ़ाया क्या जा रहा है वो मांगा गया है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितना लायक है, पढ़ाने लायक उनको है, या तो उनको रिटायरमेंट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया है। तन्मय, आप न्यूज अगर नहीं देखते होंगे तो देखा कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार इतना स्ट्रिक्ट हो गया है एजुकेशन लॉस को लेके, यू कांट एवर इमेजिन। इफ द फैकल्टी इज नॉट गिविंग और डिलीवरिंग इज 100% इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, देन ही और शी विल बी सैक्ड। ट्रांसफर नहीं बोला है, या उनको नहीं बोला है कि इसको सैक्ट कर देने बोला है, एकदम नाम काट दो। सरकार के पास अननेसेसरी पैसा नहीं है उनको विज देने के लिए। बहुत से टीचर्स ये फैकल्टीज जो है अपना नौकरी छोड़ देते हैं, उनका नाम ही चला गया, कट गया इसकी वजह से। एक एक उत्तर प्रदेश के एक टीचर जो डीसी साहब गए थे, दिखा रहे उनको 5 का पहाड़ा पढ़ाने बोल रहे हैं, वो पढ़ा नहीं पा रहे, 5 का टाइम टेबल, कैसा नौकरी मिला है। वेन ही वॉज इन आस्क्ड हाउ यू गेट द जॉब, उसने कहा घूस देके, पैसे देके। सोचो टीचर का भविष्य क्या होगा। तो ये दिक्कतें अभी तो पहले प्राइवेट सेक्टर में था, अभी प्राइवेट सेक्टर में कम हो गया है, लेकिन और गवर्नमेंट सेक्टर में जबरदस्त हो गया, जबरदस्त, बहुत ज्यादा। आप जानते हो ये 8th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन रेलवे एम्प्लॉइज को उस एम्प्लॉय को मिलेगा जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस 100% रहेगा। मतलब क्या है 100% का मतलब, आप अगर देखिएगा, न्यूज देख लीजिएगा, जिसका छुट्टी ज्यादा नहीं लिया है, कैजुअल लीव ज्यादा नहीं लिया है, अर्निंग लीव नहीं है, सिक लीव नहीं लिया है, एवरी डे काम किया है, 9 आवर्स जो शिफ्टिंग होता है,
वो कंटिन्यू मेंटेन किया है, कोई भी कंप्लेन नहीं, कोई भी शोकॉज नहीं, उसको मिलेगा। बाकी सबको इस तरह का बोनस या इस तरह का जो आपका 8 पे कमीशन, उस पे बेसिस पे सैलरी नहीं मिलेगा। समझ में आया तन्मय? यस सर। ये चीज है। और बोलो। नहीं सर, यही वाला क्वेश्चन था, मेरे ठीक दिमाग है। में आया था तो सोचे कि एक बार पूछ नहीं नहीं, लेते बहुत अच्छा किया। ये सब पूछना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है पढ़ाई के बाहर भी पूछना चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ता है। देखो आपको पता नहीं था ये सब चीजें, अभी ये सब चीजें पता चली है आपको। अभी वो रेलवे वाला जॉब आप पहले जो था चेयर में जाके बीड़ी पी के आप दिन भर चेयर में दिन बिता दिए, वो गया, हैं। गया हो गया, बहुत भयंकर। योगी तो अभी सरकार तो सर उत्तर प्रदेश में बहुत कड़ाई कर दिया सिर्फ है अपना। सिर्फ योगी सरकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, अश्विनी मिस्टर अश्विनी कुमार वैष्णव जो किया है ना, आप समझ नहीं सकते हो। मतलब एकदम, मतलब रगड़ के रख दिया, रगड़ के रख दिया। मतलब इतना गाली पड़ रहा है ना टाटा, मतलब जहाँ कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो कि है रेलवे में, इतना गाली, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला मेरे को नौकरी छोड़ने का मन कर। आप जाइए, बोला इतना गाली, इतना गाली, मतलब गंदा गंदा गाली दे रहा है। काम करने का औकात नहीं है, काहे आ गया, इतना गाली दिन भर गाली। तो इस जगह कोई माहौल में काम कर सकता है? शोकॉज लेटर मिल ही रहा है। मतलब गलती आप करोगे, गलती आपको मिलेगा, गलती करने से शोकॉज लेटर रिड्यू हो जाएगा। अगर 3-4 शोकॉज लेटर आपके फाइल में चढ़ जाता है, आपको लगता है आपका अप्रेजल होगा, आपको 8 पे कमीशन में बेसिस पे सैलरी मिलेगा? नेवर यार। बहुत खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक। वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं, जिसका 50 साल से ऊपर हो गया वॉलेंटियर रिटायरमेंट, वो काम करने का लायक नहीं है 60 साल तक। बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गया है। चेंज हो गया, गवर्नमेंट बहुत कुछ चेंज कर दिया है। इट्स गुड, हमारे देश इसलिए तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हम लोग सिचुएशन के वहीं रहते हैं। ठीक है। ओके ओके सर। तन्मय, कल हम लोग ओके फिर सर। पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। थैंक थैंक यू थैंक सर। यू।